Like we work for the body, we go to the gyms, we go for the yoga, or but what about mental health? यहाँ से सबसे ज़्यादा emotions निकलते हैं. When you're sitting in your meditating state ना, fire color is yellow. When you go into the deep meditation ना, you will get to see the blue shades of the fire. Okay. So that landscape will be created with the single dots. Okay. And now don't ask me question how many dots. I have no idea for that. Okay. I have no idea for that how many dots go for the one painting. I have no idea. Okay. Like simple dots. Single dot. I think the major thing is believe in yourself. हमारा belief कहीं ना कहीं आके ना खत्म हो जाता है. अगर आपको अपने अंदर belief नहीं ना रहेगा तो आप energies क्या दे रहे हो? तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, आपको यहाँ की वाइब कैसी लग रही है? It's very positive. Really? Yeah, it's very positive, and you know, it's like more of like you will get new ideas if you'll sit here. So I was thinking कि whenever I'm short of idea, we'll come here and get more ideas. Anytime. Yeah. And मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले ना अपने बारे में आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में कुछ बताएं ऑडियंस को. Okay. So hello everyone, I am Ritti Seth Dua and I am basically an interior artist. Okay. And I'm working since last 16 years into this field, basically for the residential and commercial areas. Okay. Yeah. तो आपने जैसे बताया आप इंटीरियर आर्टिस्ट हैं, तो एक डिफरेंस क्या होता है कि इंटीरियर आर्टिस्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर में? Okay, so the difference is basically, let's say architect ने आपको एक structure दे दिया, right? Let it be commercial or residential. So then there comes an interior designer. Okay. Nowadays architects also do the interiors. So it's a very slight, a thin line, difference. The difference is बिल्डिंग दे दी आपको, राइट, एंड देयर कम्स इंटीरियर डिज़ाइनर, एंड इंटीरियर डिज़ाइनर ने आपको आके एक लेआउट बताना है कि आप फर्नीचर ऐसे रख सकते हैं. यू कैन गो फॉर टाइल्स, मार्बल्स ऑन द फ्लोर, आपका वॉल्स का पेंट क्या रहेगा, सीलिंग में लाइट्स कैसे रहेंगी, यू नो, टेक्निकल पार्ट इज ऑल डन बाय द इंटीरियर डिज़ाइनर. नाउ कम्स इंटीरियर आर्टिस्ट. इट्स बेसिकली यू नो अ चेरी ऑन द केक. लेट्स से आपका सारा लेआउट इज डन एंड एवरीथिंग, बट योर वॉल्स आर एम्प्टी और योर कॉर्नर्स ऑफ द लिविंग रूम आर एम्प्टी, राइट. सो वहाँ पे फिर हमारी टर्न आती है, इन द सेंस ऑफ वॉल्स को एनहांस करना है. वी कैन प्रोवाइड यू द वॉल आर्ट्स, वी कैन प्रोवाइड यू द कस्टमाइज्ड क्लॉक्स, राइट. And to fill up the corners, we can provide you the planters, we can give you the coffee tables that are very budgeted ones. Okay. So like with little things, we can enhance the space more. Okay. Yeah. तो अगर एक एग्जांपल यानी कि अगर हम एग्जांपल है, आपको क्या लगता है एक इंटीरियर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस जगह पे? Okay, so I think here we can add planters, you know. Planters, yeah, okay, because nowadays there are some indoor plants you can place in the indoor area, and I think they give you a more vibrant feeling and more, you know, positivity to think a little in a different manner, right? Now, as you can see, like I know there are windows, you know, behind the blinds, but there's you have covered the natural light basically, right? So I think you should add some little bit planters. That's it, nothing more. Okay, like कुछ ऐसे plants होते हैं जो specifically for the indoors. Now if I call about, there's snake palm. So basically that plant is basically to provide you the oxygen in the interior part. So I think that can be done. Money plant you can keep. So there are many plants that can help you, you know. कई बार क्या होता है, आप काम पे आते हो बट आपका वो एक मूड नहीं होता है. When you see the plants and everything, आपका मूड स्विच हो जाता है. Actually जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करें तो बहुत क्यूट सा, बहुत सही सा लगता है. Yeah, right. So I think it's a good thing if you add more plants in your area. ओके, गुड. एंड जैसे आप इंटीरियर आर्टिस्ट हो तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप डील करते हो? ओके, so to talk about, let's start from the variety of tables. Okay, now there are coffee tables that are very budgeted, right? That can be kept in the, you know, smaller areas on the corners. And then I do the luxury designer tables, like in many different shapes. And thirdly, I do the most, you know, what you say, hot selling product. Okay. It's a butler tray table. It's basically used for the bar areas. अच्छा. Okay. Right? Yeah. Right. So that is the thing. Then the wall arts. And the wall arts are the different kinds of wall arts, like that are done on the canvases, MDF, and textured. MDF is a board. Board? Yeah. जैसे कैनवस होता है ना, सो सेम एज कैनवस इज अ शीट, पतला कपड़ा होता है जिसपे हम पेंट करते हैं. सो MDF इज अ सॉलिड बोर्ड
उसके ऊपर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. You can work with the texture paints, right? You Okay. can work with acrylic paints. Okay. You can work with resin. Since I'm Right. working with resin from last 16 years, right? Hmm. अब मार्केट में बहुत ट्रेंड आ गया है, बट आई एम Right, वर्किंग right. फ्रॉम लास्ट 16 years with Wow. that. So it's a basically chemical. तो जब हम अच्छा. केमिकल के साथ काम करते हैं तो हम MDF पे काम करते हैं. Okay. Yeah. और मैम मैंने ये भी देखा, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, Yeah. लोग समझते ही नहीं है कि इससे कितनी ज्यादा आपकी वाइब चेंज हो जाती है, Mm-hmm. राइट? तो आपको क्या लगता है कि अगर हम कुछ ना कुछ ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ना, आर्टिफैक्ट्स हो गए, जैसे आपने कहा कॉफी टेबल वगैरह, इस रखने से आपको क्या लगता है एनवायरनमेंट चेंज होता है कुछ ना डेफिनेटली होता है. आप एक चीज देखो ना, व्हेन यू आर ड्रेसिंग अप, कुछ? if you wear some accessories, what happens? फील थोड़ा Same is with the place. हाँ, right. If you're adding little elements, right, and you know balancing your environment area, or you balancing your living areas, it automatically gives you boost. Right. Yeah. जैसे ना जब स्टार्टिंग में ये वाला स्टूडियो बन रहा था, तो हमने ना जैसे ये बनाया था, बट देयर वाज नथिंग ऑन दिस. Okay. तो फिर एक दो लोगों की सजेशन आई कि कीप समथिंग, तो ऐसे हमने भैया हैं यहाँ पे, उन्होंने Yeah, बनाया. because they say ना कि empty spaces give you negative energies. हाँ, right. So कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि this area is dead or something, keep a plant. Okay. Yeah, or keep an, yeah, like the way you have kept this also. Right. So you can keep anything which can give you positivity into that. Yeah. Right. Okay, so coming back to my products, then we do the wall arts, then we do the clocks. Clocks we do for the residences, for the commercials, and then we do for the corporate houses. Like corporate houses को कई बार requirements होती है, branding clocks की. So like that way. And then I do the products for the home decor, includes platters, trays, coasters. Okay. So basically my work is basically totally customized. Customized. अब जैसे आजकल the trend is there ना, Pinterest पे गए, कुछ search किया, मैम ये बना दोगे please, right? Right. I don't copy the things. अगर for example let's say आपका कोई शौक है, आपको रेजन में कुछ चाहिए, आपने मुझे एक डिज़ाइन दिखा दिया, अब वो सेम चीज़ नहीं बनेगी बिकॉज इट्स अ केमिकल ने अपना ही स्टाइल लेना है, जो भी लेना है, राइट? सो आई मेक श्योर कि जो क्लाइंट है या कोई भी कस्टमर है वो उसके साथ मत स्टिक रहे. So I give my own original ideas, I create samples for that, and I then do my work. If you will check my page 350 creativity now, so there will be no copied design, they're all original designs. Yeah. तो इसके अलावा भी जो और किसी मटेरियल में काम करता है, जैसे वुड हो गया, Yeah. स्टोन, समथिंग लाइक दैट? So I do pen artwork. Pen art. Yeah. Okay. So pen artwork is basically if I am going to create a landscape, for example, right? So that landscape will be created with the single dots. Okay. And now don't ask me question how many dots. I have no idea for that. Okay. I have no idea for that. How many dots go for the one painting? I have no idea. Okay. Like simple dots. Single dot. And the thing is like I created a landscape of a jungle, right? Okay. And the jungle landscape took me 2 months. Now the reason is you can't, गलती की गुंजारिश नहीं है, because paper पे एक बार जो dot लग गया, that can't be erased, right? So you need a lot of patience for that. Whether it's related to any creativity line, I think. If you're doing oil paints, you're doing acrylic, you do any kind of paint artwork, I think patience is required. So that one single dot you need to work on. And you have to work continuously. If, for example, if I suppose I have to do this much of work in a block, so I need 2 hours on this particular thing to work on. Okay. Because dots are not of one, single pointer. It can be 0.00, it can be 0.01, right? That way. And the third work I do is Nescafe coffee you drink. Yeah, I make paintings with that. Like coffee se paintings? Yeah. Okay, like वो कैसे work करता है? Basically what happens is generally we use acrylic colors or poster colors into that. So I take coffee as my medium. Okay. So I give, shades of browns into my paintings. Okay. Yeah. So this is how I work. So one is resin, then is pen artwork, and then is this, coffee painting, which I call as mixed media because I work with mixed media. Mixed media. I work with ceramic, I work with cement, I work with POP. Okay. So I think that's, I work with sand. Sand also? Yeah. Sand से क्या बनता है? Sand is basically when you are working with, working with POP or you're working with cement, you need a little bit of, binder. So sand
comes as a binder into that. अच्छा The wall art I show you, you have हाँ, seen हाँ, that cement wala wall art. हाँ So हाँ it's a mixture of everything, अच्छा and it's all handmade. सभी Yes, Okay. it's all handmade. No Okay. labor, nothing. okay Everything is handmade. So as my hashtags is handmade is all mind made. You Right, need right, patience to work on. right So this is how I work. तो जैसे ही जितने भी ये क्रिएटिव वाली चीज़ें आप करते हो एक तो आपने जैसे बताया कि ये आपको पेशेंस सिखाती है और क्या क्या चीज़ें सिखाती हैं ये सब चीज़ें I think the major thing is believe in yourself. ओके Now being as an artist, what happens is हमारा belief कहीं ना कहीं आके ना खत्म हो जाता है. ओके We are creating a piece. We know कि we are creating a very good piece, right? But वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती जरूर है. कहीं ना कहीं लगता है यार मैं सही कर बनाते रहा हूँ। बनाते ना ठीक बन रहा है यार. I mean, is it okay? फिर ना बैक ऑफ द माइंड आएगा नहीं आई थिंक दोबारा कर लेना चाहिए. Oh, At that time, you need to push yourself and you have to believe in yourself that whatever you creating is a different thing. अगर आपको अपने अंदर बिलीव नहीं ना रहेगा तो आप एनर्जीज क्या दे रहे हो अपने आर्ट वर्क में. हाँ अगर आज मैं पॉजिटिव एनर्जी से देख रही हूँ अपना आर्ट वर्क, राइट आई एम वेरी हैप्पी. राइट द डे नेगेटिव थॉट प्रोसेस केम इनटू माय माइंड कि नहीं यार ये अच्छा नहीं बना, माय मोरल विल बी लाइक दिस. अब वो सारा जो मेहनत करी सब गई राइट And the part is like, you know, I don't know it's the best part or worst part is once you're working with chemical, उस टाइम पे आपके दिमाग में ना वो confusion और illusions नहीं आनी चाहिए कि मैं गलत बना रही हूँ कि ठीक बना रही हूँ. अच्छा It always has to be positive. Whatever I'm making good. ओके कि एक तो पॉजिटिव माइंडसेट सिखाती है और साथ ही साथ में खुद पे भरोसा रखो बिल्कुल. कि अब शुरू कर दिया अब खत्म अच्छा ही होगा. ठीक है नाइस ओके तो हम थोड़ा सा अब यहाँ से हटकर BNI से बात करते हैं क्योंकि हम BNI के थ्रू ही मिले हैं. Okay. तो आप मुझे बताओ कि आपको ये जो खिताब मिला है आयरन लेडी का ये क्यों मिला है Okay. Okay. So I got a title of Iron Lady is because I am very disciplined, right? Now BNI is a business organization, right? It's like working from last 38 years. So that means जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या BNI का कोई प्रोटोकॉल्स है दैट मीन्स वो मायने रखते हैं आपकी लाइफ में, राइट ना. तो अगर हम BNI के कोर वैल्यूज के बारे में भी बात करें, यू नो, गिवर्स गेन और इनोवेशन प्लस ट्रेडिशंस एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट. अगर आप उनको भी फॉलो करके भी यू आर यू नो वर्किंग इन BNI. I joined BNI as a member. Right. So at that point of time I was not an Iron Lady. Okay. So when I became a support director consultant, then I was Iron Lady. The reason behind is because मैंने ना प्रोटोकॉल से ना ऐसे चलना है, वो ऐसे और ऐसे नहीं होना है. So people think कि जो डिसिप्लिन होके चलते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल होके चलते हैं, people think they are Hitlers, right? So I think वो चीज़ आपकी लाइफ में काम आती है. अगर आज आप डिसिप्लिन के हिसाब से चल रहे हो आपकी लाइफ बहुत ईजी है. इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन आपकी लाइफ हेल है. सो इट्स बेटर टू लिव योर लाइफ विद द डिसिप्लिन. क्यों उसको वो करना है. सो दैट इज व्हाई आई एम अ हिटलर, क्योंकि मैंने वो चलना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है. ऐसी ना सिमिलर जैसे आप कह रहे हो कि आपको एक खिताब मिला है तो हमारे एक्टिंग में भी एक सर थे उनका नाम था सूरज व्यास. तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और कुछ बच्चों को ना वो चीज़ बुरी लगती थी क्योंकि बाकी सारे टीचर्स एवरीवन वाज अमेजिंग पर बाकी सारे टीचर्स वुड से गुड एफर्मेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. तो सर एक बात बोलते थे कि यार अगर मैं तुम लोगों को एक झूठी सलाह देकर या फिर झूठी ऐसे ख्वाब दिखाकर करूँगा ना तुम लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा. तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम क्या गलत करते हो. तो सर ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. और जैसे आप कह रहे हो ना आपको वो टाइटल मिला हिटलर का तो उनको भी ये मिला हुआ था. बट नाउ व्हेन अब मेरे को इतना टाइम हो गया है पास आउट हुए नाउ आई रियलाइज कि जो सर चीज़ें बोल रहे थे कि वो डिसिप्लिन लाइफ जीना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज जैसे आप कह रहे हो प्रिंसिपल से आप इधर उधर हटना शुरू हो जाते हो. Obviously you have to be focused, right? My concern in BNI is only कि if I am support director consultant, my belief is that you as a member should enjoy every you know system of BNI. So अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना, it's your benefit, it's not my benefit. I'm just telling you कि what BNI is telling us to do so that you know we can generate business. That's it. और तो कुछ भी नहीं है. Yeah. Exactly. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन अ गुड वे. तो हाउ डज अ पर्सन
bring his individuality to the table. कई बार क्या होता है जब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो भेड़ चाल में नहीं पता लगता किसी बंदे का, Right. बट कोई बंदा जो एक अलग दिखता हो क्राउड से, Mhm. हाउ टू क्रिएट दैट पर्सनालिटी, बिकॉज आई फील कि आपकी वैसी पर्सनालिटी है. Okay, for that again. Okay, so what happens is, first is how you present yourself, Right. right? So I remember when I used to study my interiors, so my director, Miss Mona, she told me that how you have to present yourself in front of so professional people, right? How I'm speaking, if I'm speaking, how I'm standing, right? So that matters a lot. And in what tone are you speaking? Is your pitch going up and down? Is your pitch stable? Or is your pitch very low? So when you speak also, अब कई बार क्या होता है, कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करके बोलना पड़ता है with a high pitch. And there are some things that has to be very normal, right? So if I talk about BNI, right? So generally we say good morning BNI, right? If I say good morning BNI, so there's a difference. Right. So there's a difference. Stress. How you pitch, so there's a difference. So during my interiors, right, when I was studying my interior designing, so they taught us how to, present yourself, how to speak. And I still remember there was a, sir, he used to come from Bombay, Mr. Pallav Bose. Okay. So the first time we met him and we have a session, right, and he said, good morning INIFD. So we were like, good morning INIFD. He was saying, is this the way to speak the name? And we were like, अच्छा ऐसे नहीं बोलते हैं. He taught us how you have to speak. So he says, good morning INIFD. So people listens you carefully. हाँ, अगर आप ऐसे monotonous बोल दो कोई सुनेगा नहीं. Good morning INIFD. Good morning BNI. So वो एक आपका memento नहीं बनता है. So to create that memento, to make your individuality, you need to present yourself, how you speak. Again, the 7 cores of BNI. Right. How you build relations, how you speak, in which tone you speak, and what is your pitch, right? And how you build your relation in a positive manner. It can be, in the way of आप किसकी कितनी help कर रहे हो, या किसी को आप guidance दे रहे हो. So my grandfather used to tell me that you're a very good leader. You tell the people how to lead, how to, go ahead in their life. So I think, yeah, for this you need to, again, then you are called as attitude. But I think that is a compliment for me. If I know people think that I'm a Hitler, I'm attitude problem. But I think for being and showing up your individuality, you need to keep that, but in a positive manner. In a positive manner. Not in a negative manner. Because everybody knows I'm a very helping hand person. Right. You come with any kind of a problem, I'll give you a solution for that. Obviously, at times I think I should be a motivational speaker. But ठीक है, ऐसे ही ठीक है. तो जैसे आप ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर जो अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं उनको किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? Okay, so talk about the first point is, we as a human, right? It's a human psychology or human tendency to be biased. If you're a leader, you can't be biased. Right? If anything is going up wrong, you have to say it wrong. If it's going right, you have to say it right. But you can't be biased and you can't be partial. You have to keep your vision totally non-biased and non-partial. Then only you can grow as a leader. Otherwise, you can't grow as a leader. And secondly, when you know that you have a team, right, working for you, or like, so there should be no kind of, hierarchy level. I am up and you are down. No, on the same level. It's just, I am on 1, you are on 2. Other is on 3, other is on 4. It should not be like this or this or this. It can't be like that. Because wo kya hoega, then there will be, trust issues. People talk more about the ego issues. I think the more is trust issues. For example, if I have to give you any suggestion, right? So if we are having trust to each other, तो आप मेरी suggestion बहुत positive manner में ले लोगे. अगर आपका और मेरा trust नहीं है, तो आप मेरी suggestion को कभी भी positive manner में नहीं लोगे. या फिर अगर hierarchy level हुआ तो? Hierarchy level भी है, and otherwise also.
if we are meeting, let's say we met through BNI, right? If we are meeting also, and if I give you suggestions कि विश्व यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कर लेना चाहिए, right? और आपको ऐसा बोलना चाहिए, या आपको ऐसा करना चाहिए, right? You will take my suggestions only if we have trust issues. अगर आपका मेरा ट्रस्ट होगा तभी आप मेरी सजेशन को पॉजिटिव लोगे. अगर नहीं होगा तो आप मेरी सजेशन को कुछ नेगेटिव में ही ले जाओगे. देन व्हाट विल पर्सन विल डू इज वो ही बात को 10 लोगों को जाके बताएगा. यार उसने ना मुझे सजेशन दी थी. वो होता कौन है मुझे सजेशन देने वाला? So I think that has to be only and only then if you have trust. So 2 major things. One is you have to be non-biased and non-partial for being a leader. Right. And secondly, you have to create a trust. And वो जैसे बुजुर्ग नहीं कहते होते थे, like our grandparents used to say कि तुम्हारी ज़बान एक ही होनी चाहिए, इधर से इधर नहीं जानी चाहिए. अगर मैं आपको जो चीज़ बोल रही हूँ वही सेम चीज़ एज अ लीडर आई शुड से टू 10 अदर पीपल द सेम थिंग. ये नहीं कि आपको कुछ उनको कुछ और उनको कुछ खुश रखने के लिए. नो, लीडर कांट मेक एवरीबडी हैप्पी. अ लीडर आपको एक साथ लेके चल सकता है. Right. सबको खुश नहीं कर सकता, बट आपको साथ लेके जब चलेगा, जैसे ही साथ लेके चलेगा वो ट्रस्ट पड़ेगा. जैसे ही ट्रस्ट पड़ेगा एवरीवन विल बी हैप्पी पर्सन. एंड जैसे आपने बताया कि आप पहले मैं ये एक सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो बहुत डरते हैं कुछ नया स्टार्ट करने को, यू नो. और मेरा उल्टा है, मैं चीज़ें स्टार्ट कर लेता हूँ इजीली. मुझे कोई आइडिया आएगा, मैं 2-3 लोगों को बताऊंगा, हफ्ता डिस्कस करूंगा और इम्प्लीमेंट कर दूंगा. राइट. तो कैसे उनको ये सिखाया जाए कि आपको इन चीज़ों की डर, ज़रूरी नहीं सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बॉयज़ ऑल्सो, मेल्स ऑल्सो. तो कैसे, क्योंकि फेलियर तो एक पार्ट है ही, कुछ भी स्टार्ट कर लो. तो आपकी क्या राय है उस पर? आई थिंक एवरीबडी थिंक्स ऑफ इट. दिमाग में सबसे पहले फेलियर ही आता है. वो होता क्या है कि आपने स्टार्ट अभी कुछ भी नहीं किया होता, बट यू आर सेंडिंग योर मैसेज टू द यूनिवर्स कि मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट मैंने फेल हो जाना है. देन यूनिवर्स विल ऑल्सो से तथास्तु, डोंट डू इट. एग्जैक्टली. If you have a passion to something related to your, you want to reach to your dream. जब तक स्टार्ट नहीं करोगे पहुंचोगे कैसे वहां तक? Exactly. I know failure is a part. I am also working from last 16 years. Failures आज भी होते हैं, but you need to accept it and move on. Right. Now there's an option. Failure हुआ, failure के बारे में बैठ के सोचा क्यों हुआ, उसका कोई ना कोई रीजन होता है. रीजन बाहर निकाला, रीजन के ऊपर सोल्यूशन निकाल के काम किया, एंड यू आर डन. अगर आप पहले ही सोच लोगे कि मैंने ऐसे काम स्टार्ट करना है, बट मुझे पता है मैं फेलियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं कैसे चलूंगी, पॉसिबल ही नहीं है. आपके माइंड में पहली चीज आई कि आपको कुछ करना है लाइफ में, सो दैट मीन्स यूनिवर्स इज गिविंग यू एन आइडिया. डू समथिंग, यूटिलाइज योर पैशन, रीच टू योर ड्रीम्स. दैट मीन्स यूनिवर्स इज गिविंग यू अ सिग्नल. इफ पॉजिटिविटी इज कमिंग टू यू, डोंट make that thing into negativity. Don't do it. और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस, हमारी ज़्यादा होती है. हम कई बार घर से निकल के कहते नहीं है यार आज ना मीटिंग पे टाइम पे पहुंचना है, पर अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो, और वो मिलेगा ज़रूर. Why? Because you have manifested that already to the universe. कि मैं ना यूनिवर्स जी मैं घर से बाहर निकलने लगा हूँ, और मैंने तो ट्रैफिक भी बोल दिया, आपने सुन तो लिया होगा, तो आप आगे दे भी दोगे. So I think if you have a passion, if you want to reach your dreams, do it बिंदास होके. Don't worry. Ups and downs आते हैं, it will come. Again, you have to be positive for that. Keep a positive attitude and keep on moving. And one thing, which I learned from my dad, don't stop learning in your life till you are alive. And there one thing which BNI has taught us, to learn new things, you have to unlearn the old things. Obviously. अगर वो नहीं करोगे तो फिर तो हर कोई सीखा सिखाया है दुनिया में. तो वो चीज़ें करने के लिए यू नीड टू डू दैट. इफ यू वर टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑल्सो, सो बीइंग अ लीडर, राइट, चाहे वो अपने काम में है, चाहे वो एज अ मेंबर इन BNI है, आपको नई चीज़ें सीखने के लिए पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, नहीं तो आप नई कुछ सीख सकते हो. दैट्स अ फैक्ट. एंड माई डैड वॉज ऑलवेज showed me a positive side. I'll share you an experience. So what he told me once, we have a human psychology. आज आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, so in my mind you are wrong. Your name is wrong. Vishav is wrong.
बट हमने कभी ये बैठ के नहीं सोचा कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी विषव के साथ या जो प्रॉब्लम आई थी उस पर काम करते हैं। विषव पे नहीं काम करना। आई एम नॉट supposed to work on Vishav. I'm supposed to work on the situation or problem that was created at that point of time. तो क्या साइकोलॉजी आ गई, मैंने विषव से नहीं बात करनी है, लेकिन हमने वो प्रॉब्लम और सिचुएशन पे नहीं काम करना। Never get your relations bad with the person. Always try to work on what is the situation. क्यों हुई सिचुएशन, ऐसा रीजन क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। Always consider on the problem or on the situation. Don't consider on the person. Right. This is what my dad taught me. Right. जैसे हम उल्टा चलते हैं ना, हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं कि इसकी गलती, इसने गलत करा। Right. So we stop talking. We stop communicating. We stop cribbing. नहीं इसने गलती की, इसने गलती की। But हमने कभी जाके पूछा भी नहीं होगा कि यार वो हुआ क्या था ऐसा जो हो गया। At times it happens with us also. यार हमने कहीं जाना था, हम पहुंच नहीं पाए। But हो सकता है कि हमारे साथ पीछे कोई मिस हैपनिंग हो गई हो या हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, तो वो माइंड में क्या होता है, ये आई नहीं ना थी, ये आया नहीं ना था, हमने इससे बात ही नहीं करनी है। बट तुमने क्या कभी पूछा कि वो क्यों नहीं आया या क्यों नहीं आई? दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। वो हम एज्यूम करते हैं ना चीजें, व्हाट यू कॉल द परसेप्शंस। सो परसेप्शंस इज द, आई थिंक, द नेगेटिव थिंग अगर किसी ह्यूमन की लाइफ में है। परसेप्शंस नहीं आनी चाहिए। हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, वो ख्याली पुलाव, वो नहीं बनानी चाहिए। बेटर, क्योंकि लाइक आई बिलीव कि assumptions क्रिएट करना इजी है, सच को जानना मुश्किल है। इसलिए हम, हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी वो सोच वैसी हो जाती है। सो आई थिंक वर्किंग ऑन दैट वी शुड वर्क इन द डिफरेंट मैनर। या एंड आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ना फेलियर का फेयर इतना ज़्यादा है कि उनको ये भूल जाता है कि फेलियर की फेयर से सब बड़ी चीज़ है गिल्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको हल्का सा अपना कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि द रीज़न मैं एक्टर इसलिए बना कि मैंने ट्राई करा था, मुझे करना था ये चीज़, मुझे गिल्ट नहीं रखना। अगर मैं नहीं भी बनता एक्टर तो इट वाज ओके फॉर मी। अगर नहीं भी कुछ होता अच्छा तो आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे मुंबई जाना है सीखने के लिए। तो पहले तो यही डर था कि पापा से पूछूं कैसे कि पापा जाने देंगे कि नहीं। मैं कहा यार बाद में गिल्ट होगा कि अगर गया नहीं। फिर आज से जैसे वो 3 इडियट्स में डायलॉग ट्राई नहीं किया, एग्जैक्टली वो चीज़ मैम, वो सेम डायलॉग मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं पापा के पास जाऊंगा 20 साल बाद, मैं कहूँगा यार आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे को जाने नहीं दिया। राइट। तो अब वो ऐसा हुआ भी नहीं कुछ, वो फालतू में मैनिफेस्ट हो रहा था। मतलब हम फालतू में सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो मैंने ये सोचा हो सकता है पापा हाँ ही कह दे, मनाना ही नहीं पड़े ज़्यादा। अब वही हुआ। तो मैंने कहा कि पापा मेरे को मुंबई जाना है। कहते हैं हाँ ठीक है चला जा। पापा इंडिया में भी नहीं थे तो उन्होंने कहा कर देते हैं, आई विल पे द फीस, तू चला जा। तो वो चीज़ मेरे को समझ आई कि कहीं ना कहीं जो फेलियर का फेयर था ना, उससे बड़ा मुझे गिल्ट का फेयर था, रिग्रेट का फेयर था, क्योंकि वो रिग्रेट होता। तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग? आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं है, बस एक यही चीज़ का था। व्हेन आई वाज स्टडिंग, हमारे टाइम पे ना इतना people, like students especially, were not like was going for further studies out of their cities, right? So mind में एक ही thought था कि अगर उस टाइम पे hesitations ना होती या उस टाइम पे अगर इतना confidence होता तो आज मैं भी लुधियाना से कहीं बाहर जाके पढ़ के आती। You understand me? Right. और अगर आज मैं सोचूं कि I can travel here and there I can study, I can go easily. Why? Now there's a difference. वो आई थिंक टाइम का बहुत डिफरेंस आ गया है। उस टाइम पे हेजिटेशंस बहुत थी, अब हेजिटेशंस नहीं है। लाइक व्हाई? बिकॉज वी आर मोर टुवर्ड्स लर्निंग। उस टाइम पे होता था छुप के रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अगर फ्रेंड्स जाएंगी तो जाना है। व्हाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ वी वांटेड अ सपोर्ट बाय आवर साइड, फ्रेंड्स के लिए कि फ्रेंड्स जाएंगी तो हम जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज अब खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, वी नो हाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, सो नाउ वी आर लाइक ओके जाना है तो लेट्स गो। सो दिस इज द डिफरेंस। तो मतलब वो हेजिटेशन हटाना बहुत ज़रूरी है। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो वो टीचर ने कभी पूछना ना एनी क्वेश्चंस, तो हाथ नहीं कभी खड़ा करना। हाँ, मैंने भी पूरी स्कूल में कभी नहीं करा, नेवर। और वो कभी टीचर ने पूछना अच्छा मैं किसको क्वेश्चन पूछूं, छुप जाना। हाँ, सभी ऐसे ना कि मैम हमें देखना ले प्लीज। और अब उल्टा है, अब हम उल्टा करते हैं, अब हेजिटेशंस नहीं है, हाँ पूछो किसने क्या क्वेश्चन पूछना है, अब हम ऐसे करते हैं। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस। आई थिंक गिल्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा,
पहली बात तो like you have shared your experience, right? So when you thought of a positive affirmation or positive manifestation, so it converted into, Actually हो गया है. so we need to work on that. Yes, yes. Yeah. Okay. So अब थोड़ा सा फिर से टेंजेंट चेंज करते हैं. Yes. आपने मुझे बताया था जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी कि आप डांसर हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ. How did that start? Okay, so 2007 my cousin was, you know, supposed to married. So she was the first cousin हमारे नान के साइड पे. अच्छा. So she called me up and she told me हमने तो परफॉर्मेंस करनी है, कोरियोग्राफी तुम करोगी. I was in लुधियाना. मैंने कहा कैसे आऊँगी यार, इट्स रियली टफ, उधर से कॉलेज और उधर से ये नहीं आना है. वो धमकी चलती ना कजन्स के अंदर. So I came here. So I teach dance to my approximately to 12 to 15 cousins, all non-dancers. अच्छा. अब उनको सिखाओ, करो कुछ, वो करते कुछ है, साथ साथ में करो तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. म्यूजिक बंद किया तो कुछ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चल रहा था. सो आई स्टिल रिमेंबर वी वर ऑल 12-15 कजन्स इन ड्राइंग रूम एंड उनको डांस सिखाया. सो हाँ जी हमें आ गया. जब उनको बोला मेरे बिना करके दिखाओ, किसी ने कुछ नहीं किया. सो वो इधर से पिल्लोज आ रहे हैं, इधर से चप्पल्स आ रही है, सैंडल्स आ रही हैं. सो स्टिल दे टेल मी कि अगर आज हम डांसर्स हैं ना जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आपके अंदर इतनी पेशेंस थी कि आपने हमें 1-2 करके सारा डांस सिखाया. सो आई थिंक जितनी भी अभी तक कोरियोग्राफीज की है मैंने, इट्स ऑल इन माई माई लाइक विद ऑल माई कजन्स एंड फ्रेंड्स. सो आई थिंक इट्स बीन 12 to 13 years. अब नहीं मैं कर रही हूँ. अब नहीं. नाउ बिकॉज आई एम अ लीडर, सो मैं लोगों को डांस कराती हूँ. ग्रेट. ओके, तो अभी ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे हिसाब से जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो थोड़े से क्योटिक होते हैं अंदर से, ठीक है, और थोड़े से संकी टाइप भी होते हैं. संकी अच्छा होता है. संकी अच्छा होता है इन अ गुड वे. ओके, तो वो इतने सारे क्योटिक जब थॉट्स आते हैं आपके, इतने सारे आइडियाज पॉप अप हो रहे होते हैं, उस टाइम पे वो काम कैसे ढूंढे? तो आपका कुछ मेडिटेशन या ऐसा कुछ करते हो, फॉलो करते हो? ओके, सो नाउ दिस ऑब्वियसली आपका माइंड बहुत हाइपर एक्टिव होता है. इफ यू डोंट क्रिएट एनीथिंग, आपकी रात की नींद गई, भूल जाओ. सो वी नीड टू क्रिएट समथिंग, वेदर वी क्रिएट ऑन अ पेपर और ऑन एनी काइंड ऑफ अ सर्फेस. वी नीड टू टेक आइडियाज फ्रॉम हेयर एंड वी नीड टू पुट इट हेयर. वो जब तक नहीं होगा. So what happens is, since I told you that my USP I work only on original designs, right? So meditation. So I'm doing meditation from last 15 years almost. Okay. And then another technique is EFT. So it's emotion freedom technique. Emotion freedom technique. Yes. So it's basically work for your professional as well as for your personal life also. Because I think we humans have become more emotional, sentimental kind of thing. तो उस चीज़ के लिए EFT is the bestest way to come out of all your thought process, your mind process and everything. Okay. Yeah. तो कुछ आप बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसके बारे में? Okay, so it's very elaborated otherwise. So meditation is being done with 5 elements. Like one is like you sitting on a chair, you're crossing your legs and crossing your hands. And obviously mind में ना पहला thought ये आएगा कि मैंने अगर आँखें बंद की ना तो मेरे दिमाग में thoughts बहुत आएंगे. लोग इसी के डर की वजह से मेडिटेशन ही नहीं करते. बट इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन, इट्स फाइन. आप कोई मशीन तो नहीं कि पीछे से कोई बटन ऑन एंड ऑफ करेगा कि थॉट्स नहीं आने चाहिए. द बेस्ट वे इज एक म्यूजिक लगाओ, वेरी सूदिंग म्यूजिक, राइट? सिट ऑन अ चेयर एंड प्रेफरेबली डोंट सिट इन योर बेडरूम्स, राइट? बिकॉज दैट इज योर वेरी पॉजिटिव एंड पर्सनल स्पेस. सिट इन अ सिटिंग एरिया, सिट ऑन अ चेयर, आराम से रिलैक्स होके, राइट? And एक music लगाओ, right? Sit with your crossed legs and crossed arms like this and just sit and close your eyes. Music सुन रहे हो, go with that flow. Thoughts आ रहे हैं, आने दो, don't stop them. What happens if you stop your thoughts ना, वो फिर से pop up होके आएंगे. And जब आप देखोगे ना starting में 5-10 minutes के लिए thoughts आएंगे. And the most important thing is don't hold your thoughts. आज इफ आई एम डूइंग मेडिटेटिंग एंड मेरे मेडिटेटिंग में थॉट आ गया, यार मैंने तो उसका ऑर्डर बना के देना था. अगर मैं वो थॉट होल्ड कर लूँगी ना तो वो दैट इज़ नॉट माई मेडिटेशन. मैं उससे काम नहीं हो रही हूँ. लेट इट कम एंड गो, लेट इट गो. 10 minutes के बाद एक ऐसा फ्लो आएगा कि आपके माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं होंगे. देयर विल बी नो थॉट्स इन योर माइंड. सो आई नो इट टेक्स टाइम. आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऐसा नहीं होता जी,
ऐसे कैसे? इट हैपन्स, थॉट्स आएंगे. अगर आज मैं भी बहुत ज़्यादा किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बैठी हूँ, या इफ़ आई एम इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड, अगर आज मैं भी मेडिटेशन करने बैठूंगी, मेरे भी स्टार्टिंग में पहले थॉट्स आएंगे, बट आई डोंट स्टॉप देम. मैं एक थॉट को होल्ड करके नहीं बैठती हूँ, लेट इट गो. जब वो हो जाते हैं, देन calmly you will feel like it's totally blank in your mind and everything. But again, you have to first have a belief in that. Exactly. कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं calm and peace में रहूँगी. Otherwise, there is no fun of doing anything. And secondly, if you're talking about EFT, so it's a very elaborated technique. We can do a different podcast. Yeah. So it's actually a grateful. If every individual person do it, I think it's the bestest thing you do. Okay. I'll give an example. For your health, you go to the gym. What about your mental health? Right. For that, you need EFT. EFT. Yeah. Okay. Nice. जिस ऑडियंस को नहीं पता कि EFT है क्या, आप उनको एक ब्रीफ में कैसे बताएंगे? Okay. So EFT is emotion freedom technique, right? तो होता क्या है, जनरली हमारे अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, वेदर बीइंग इट योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और स्पाउसेस. तो लेकिन आपको वो इमोशंस तंग बहुत कर रहे होते हैं. एंड आप कभी ना सोचना इसके बारे में कि आप कहीं पे भी ऐसे बैठे हुए हो, राइट, एंड कहीं पे आपको बाई चांस पेन स्टार्ट हो जाए, एंड स्टिल यू थिंक कि यार कहीं पे मैं बैंग ऑन तो हुआ नहीं था, या मुझे किसी ने मारा भी नहीं है, बट पेन क्यों हो रही है? सो बेसिकली दैट पर्टिकुलर पेन इज टेलिंग यू कि आपका यहाँ पे एक इमोशन स्टक हुआ है, जो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हुआ है. So in this EFT, so we call it a tapping. We do tapping, right? So होता क्या है, for example, let's say आपने अपने फ्रेंड के साथ कोई लड़ाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ऊपर ऊपर से आपने बोला अच्छा जा तुझे माफ़ किया, मजाक में उसने भी बोला जा तुझे माफ़ किया, लेकिन somehow अंदर से नहीं किया होता, right? सो वो जो अंदर से नहीं किया होता ना, उसको बाहर निकालने के लिए या उसको एग्जैक्टली रूट से ख़त्म करने के लिए ना हम EFT करते हैं. एंड देन वी डू टैपिंग. टैपिंग का एक पर्टिकुलर राउंड होता है. कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले या सीखने से पहले यू नीड टू बिलीव दैट थिंग. आज मैं आपको कह रही हूँ EFT करके आप अपने इमोशंस निकाल सकते हो, आपको सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, बट बैक एंड माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा होता भी है. सो दैट डाउट, when you keep a doubt, nothing, कुछ भी काम नहीं करेगा. So you don't have to keep a word doubt in your mind. अगर आपने सीखना है तो मैंने सीखना है, अगर मैंने ये चीज़ को ख़त्म करना है अपने अंदर से किसी इमोशन को, तो करना है. अगर डाउट रख लिया कि यार मैं टैपिंग करके कैसे इस चीज़ को बाहर निकालूंगा, पता नहीं निकलेगी नहीं कि निकलेगी. सो अगर आप डाउट ऑलरेडी रख रहे हो और डाउट के साथ ही सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर लो, चाहे आप मेडिटेशन कर लो, EFT कर लो, या आप कुछ भी टेक्निक्स कर लो, आपके ऊपर कोई टेक्निक नहीं काम होगी, बिकॉज आपने डाउट कर लिया उसके ऊपर. तो आप जैसे बता रहे थे कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज लाइक EFT में वी हैव बेसिक स्टेज एंड देन वी हैव एडवांस स्टेज, देन दैट इज मोर एडवांस स्टेज. सो व्हाट हैपेंस इज लाइक पहले तो आपको अपने आप को समझाना है, पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर बंदे ने, पर्सन ने डिस्टर्ब किया है, ABC किसी सिचुएशन पे, ठीक है, हम उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं. पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सो व्हाट वी से इट, आई डीपली कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. I deeply completely accept myself. Okay. Accept myself. Okay. Right? So what happens is it's a round of tapping. So we start from here, we tap, then we tap here, then we tap here, then here, right? Then here, then on the shoulder, then on the sides of the ribs. Okay. And then now this is basically the major, emotion freedom. यहाँ से सबसे ज़्यादा emotions निकलते हैं. यहाँ से. Yeah. Okay. Right? So we tap here. We tap all on the fingers except this finger. Okay. This finger is related to your heart. अच्छा. Okay. Right? So we are not supposed to tap on this because your heart knows everything. अच्छा. We are not supposed to tap on this. Right. And once the tapping round is finished, now what we have to do is, ये जो दो fingers के बीच वाला area है ना, here we need to tap. You can sing any song. कैमरे के आगे. Yeah, you can sing any song and you tap. So generally people sing like happy birthday. So what I sing is चाहे मुझे कोई जंगली गाए. So any song you feel like कि आपको जो बहुत ज़्यादा
यू नो इस इमोशन से बाहर निकालने के लिए कह रहा है, हाँ. जस्ट सिंग इट इन योर माइंड, टैप इट हियर फॉर 1 minute, and then you are done. This is one round. Okay. So exactly what we start is, for example, let's say I want to tell myself I am joyful, मैं खुश हूँ. So what we have to do is we have to give ourselves a message. Okay. So what we do is we keep our thumb over here. You have to press it. You have to press it, and you have to say, even though I am joyful, I deeply, completely accept myself. I deeply, completely Accept myself. You have to say it 3 times. So 2 times more. Even though I am joyful, I deeply, completely accept myself. I deeply, completely accept myself. Even though I am joyful, I deeply, completely accept I myself. deeply, completely accept myself. When you have to press this thumb, you have to press it deep so that you should feel a pain. And afterwards, when you are done with the 3 rounds, you will see when you are doing it 4th time, you will not have a pain over here. Acha, like while pressing. Yeah. Okay. So we're done with these 3 now. What you have to speak in your mind is the affirmation. Affirmation is I am joyful. I am joyful. You are speaking in your mind. I am joyful. I am joyful. I am joyful. Okay. Right? You have to tap it. Okay. And you have to tap it. आवाज आनी चाहिए. अच्छा, खुद There को. should be आवाज आ रही है. हाँ. So आवाज आनी चाहिए, you know. Right. So one we're tapping here, then here, Okay. then we're tapping over here, Right. then on the shoulder, then we're tapping on the ribs, Okay. then on the finger. 1, 2, 3, 4, 5. Here you should tap. The hardest. Yeah, right? And once you are done over here, now here, sing a song of your own choice in your mind, Okay. and you will feel that you are, you know, getting out of that emotion. Okay. Yeah, so done. This is first round. अच्छा, ऐसे 3 round. Yeah, so you have to do a 3 rounds. हाँ. And when you just after 5 minutes of time, try it again Okay. from here. देखना यहाँ पे पेन नहीं होगी. अच्छा, यहाँ पे करना है. You have to do it for whole, you know, 1 to 2 weeks. Okay. To get out of that emotion. अभी मैंने अपने आप को बताया आई एम जॉयफुल, मैं खुश हूँ, ठीक है ना. अगर मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि मैं कहीं पे नहीं खुश हूँ, तो मेरी अगर कहीं पे पेन होगी तो मुझे पता चल जाएगा. अच्छा. एंड व्हाट हैपेंड, दिस इज द फर्स्ट वन. एडवांस इज we don't speak even though I am joyful, I deeply, completely accept myself. That was the basic one. Advance is you directly start with the tapping. अच्छा. Just speaking the affirmation into your mind. Okay. I'm joyful, and you started from here. This is the second. Third is आप सिर्फ एक specific point पे tap करते हो. I'll give you an example. For example, let's say at times आपको लगता होगा कि आपके shoulders stiff हो गए हैं या आपके shoulders heavy हो गए हैं. ये generally सबके साथ होता है. जब हम external responsibilities ले लेते हैं ना कि ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, तो आपको जो weakest point होएगा वहाँ पे आपको पेन ज़रूर होएगी. Okay. Right? So if my shoulder is paining, so I will directly go to the last advanced stage. I will do tapping over here, and I will tell this particular point, all is well, 3 idiots. So what happens is I'm telling my shoulder कि मुझे पता है कि वो responsibility मेरी नहीं है, chill कर थोड़ा सा, just chillo fine. I know all is well, all is well. Right. So you have to work on affirmations. Okay. So how to start with this? Now this is the tapping round, right? Now how to start with it? Write out a person name on your book, right? Okay. Notebook. For example, A person, right? So you need to write down the points below. Okay. With that person, you're irritated, you are frustrated, you are mentally hurt, you are physically hurt, whatever. After that, write the situation. कि मैं इसके साथ कौन सी सिचुएशन पे इरिटेट होता हूँ, फ्रस्ट्रेट होता हूँ, या ये मुझे कब मेंटली हर्ट करता है, या ये मुझे कब फिजिकली हर्ट करता है. यू नीड टू राइट दैट, राइट. फर्स्ट यू हैव टू forgive that person and forgive yourself. Okay. So what we say is, even though I am free, you are free. I deeply, completely accept myself. That means मैं भी free हूँ, आप भी free हो. मैंने इस चीज़ को accept कर लिया है. Again, if you're doing it, there should be no doubt. Okay. Surrender yourself कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा अपने लिए कर रहा हूँ. Okay. Right? So this is how it works. You've written for that one A person. ये basic tapping round तब तक करते रहो जब तक you are not satisfied properly. Okay.
यू आर नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड. अगर अंदर 1% भी रह गया ना कि नहीं मेरे को अभी भी इसके साथ इरिटेशन है, डू इट अगेन. डोंट गो टू द एडवांस लेवल फर्स्ट, डू द बेसिक, मेक इट योर रूटीन. आपको ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, आपको पर्सनल लाइफ में किसी ने कुछ कह दिया, फ्रेंड्स ने कुछ कह दिया, sit all alone, sit on a chair, be calm. Sit in your living area, study area, not in the bedroom. Sit quietly, write it down, क्या problems आ रही हैं, and do it, right? EFT is such a technique कि you will, give yourself a blessing. You're giving a blessing to your own organs, to your own cells. Right. Like we work for the body, we go to the gyms, we go for the yoga, or you can say aerobics or something like that. But what about mental health? Right. To make your cells happy, you have to be happy. Right. So for that, to make your cells happy and to tell them कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ या हम तुम्हारे साथ हैं, and हमने अपने अंदर कोई emotions नहीं रखे हैं. Emotions always create a problem in your body. Okay. Always. So there's अगर हम एक्सप्रेस ना करें तो obviously if you can't express it. अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये कौन करेगा, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, हमसे नहीं होता, हम इतना टाइम नहीं दे सकते. Other way, take a paper, write all the things on that paper. 2 ways. 1, tear it off, throw it away. Second option, burn it and blow it off. And then don't think on that. उसके ऊपर सोचना नहीं है उसके बाद कि अच्छा यार मैंने लिख तो लिया पर पता नहीं. अगेन यू हैव कम टू द बेसिक अगेन. लिखने का फायदा ही क्या हुआ अगर उस पर विश्वास ही नहीं रखना. तो डाउट है तो क्या फायदा हुआ उसका. डोंट डू इट ना. जस्ट राइट इट डाउन, इधर टेयर इट ऑफ, इधर बर्न इट आउट, एंड डोंट टॉक टू एनीबॉडी अबाउट दैट. डोंट टॉक इट. वो तो खत्म कर दिया ना आपने. आपने जब लिख भी दिया उसको, चाहे टेयर कर दिया या आपने उसको बर्न आउट कर दिया, दैट मीन्स दैट इज ओवर. So we don't have to feed that energies again and again into our mind thought process. We are not supposed to. Right. So when you do this EFT, or if you go for that writing thing, I think that is the best procedure to keep yourself calm and peace. And then my grandmother used to say, "Ik chupate so sukh." So वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा settle down and give you a calm and a peace. आजकल की लाइफ में एवरीथिंग इज सो फास्ट, टाइम इज़ पासिंग लाइक अभी ऐसे अभी गया ये वो. सो आई थिंक जहाँ तक आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग. अब जैसे सुनने को बहुत मिलता है, पीपल आर गोइंग इनटू डिप्रेशन, पीपल आर गोइंग इनटू फॉर द मोर ऑफ नेगेटिव थॉट्स. सो इट्स द सेम थिंग. सो देयर वाज अ स्टोरी लाइक देयर आर 2 bulls, पॉजिटिव बुल एंड नेगेटिव बुल. आप जिसको ज़्यादा फीड करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा. So it's better to feed positive one, why to go for the negative? कई बार लाइफ में आता है एक आपका saturation point आएगा. There you will cry, you will like speak like anything. You will scream actually. You will actually scream, not speak. You will actually scream like anything. You can scream like hell. So the best part is in your living room, play a loud music and scream whatever the way you want to scream. Don't keep it in yourself. आप जितने इमोशंस अपने अंदर रख रहे हो, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम ऑन योर ओन, राइट? सो देयर इज ऑन दिस टैपिंग ऑन एफर्मेशन, सो देयर इज एन ऑथर लुइसी एल हे. सो यू जस्ट रीड हर बुक, राइट? Nice question. It's Heal Your Body, I suppose. Yeah. Okay. And you will surprised to know if you're having a neck pain, if you're having an ankle pain, if you're having any kind of a pain in your body, there's a reason behind that pain. I know people won't believe it, but it actually works. Right. It actually works. आपको जैसे for example now people say कि जी हमारे नी बहुत पेन होते हैं, so there's a reason behind it. I know there's a science behind it also, but there's a emotion reason behind it also. Knees का is basically you are stubborn in nature. Okay. Reason being not that heat वाला system नहीं, stubborn in the sense कि let's say आपकी लाइफ में आज कुछ नया चेंज आया है, you're not ready to accept it. So that is your stubbornness. क्यों आप उसको accept नहीं कर रहे हो? Why? Because हमने चलना तो knees के थ्रू है ना. अगर आपने इनको movable नहीं रखा, इनको ही आपने अगर flexible नहीं किया, आप कैसे चलोगे?
So it's a huge, you know, science behind it. कि tapping ही क्यों, you know, and you just read about that author, right, and you get to know कि वो ऑथर को भी कोई एक प्रॉब्लम थी, वो ऑथर ने उसको कैसे किया, एंड हाउ शी हील्ड हर सेल्फ, एंड यू विल गेट टू नो कि हम छोटे छोटे इमोशंस को जो अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं ना, हमारी बॉडी को वो कैसे ख़राब कर रही है, अंदर ही अंदर खा रही है वो सब। एग्जैक्टली वो हमें दिख नहीं रहा, बट हमें पता है कि अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगेन वही वाली बात, पेन हो रही है बट क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। जैसे आपने ये बोला कि कई बार मेरे को भी रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब ऐसे कभी यहीं पे दर्द होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली कोई ना कोई इमोशन है जो मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ उस टाइम पे, जो कि मुझे ही नहीं पता, आपको ही नहीं पता। एंड द थिंग इज़ कि लाइक वी ऑब्वियसली से कि हमें नहीं पता है कि क्या बात है या क्या इमोशन है, बट एक्चुअली डीपर साइड वी नो एवरीथिंग। ओके, फॉर दैट वी हैव टू सिट विद आवरसेल्फ एंड वी हैव टू बी वेरी ओपन with ourselves. Okay. Right? Like if you're writing something on the piece of a paper and you know that you have to tear it off or you have to burn it off, you have to be very open with yourself. मुझे ऐसी कौन सी बात हर्ट की थी जो मैंने अपने अंदर रखी हुई बट मैं किसी को बोल नहीं सकता. राइट इट ऑन पेपर एंड जस्ट फॉरगेट इट. उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होना ही नहीं है. आप तो उसी इमोशंस के साथ बैठे हो, आप उसी इमोशन की एनर्जी को फीड कर रहे हो. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. मैंने भी बहुत किया है. व्हेन आई डिड माई EFT, टू बी वेरी फ्रैंक, आई से इट अ ब्लेसिंग कि उस टाइम पे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, अगर वो ना होता तो मैं EFT पे कनेक्ट ना होती. सो आई गिव दैट इंसिडेंट अ ब्लेसिंग कि थैंक यू इंसिडेंट दैट यू हैपेंड इन माई लाइफ एंड EFT केम इनटू माय लाइफ. मेरा नेक्स्ट सवाल ही ये था आपसे कि EFT में आप आए कैसे? हाँ, so what obviously I'll tell you. So there's some incident happened in my life, right? So there were talks, you know, or you can say आपको bully किया गया था for something publicly. Okay. So then my mom told me कि I have done EFT, you should also do it. Okay. I said okay. Okay. So this is how, when I entered into EFT, I started doing it. I was not having any doubt कि होगा कि नहीं होगा. मुझे पता था होगा, right? I always move on spiritual path. I always believe in surrender. So this is how I got introduced to EFT, and I thank that incident कि वो हुआ मेरे साथ. वो कई बार होता है कुछ इंसिडेंट्स आपको सही जगह पे पहुंचा देते हैं. So वो लिखा उस तरीके से था ना. EFT से इंट्रोडक्शन होनी, वो इंसिडेंट का होना ज़रूरी था. तभी मैं EFT करती. अगर वो इंसिडेंट ना होता, EFT कैसे करती. तो EFT से क्या हमारी इंट्यूशन वगैरह अगले को कहते हैं ना कि यू रीड द अदर पर्सन, ये वाली चीज़ें भी इंक्रीज होती हैं क्या? When you are into a spiritual path, in the sense when you work on more of energies. अच्छा, I'll ask you one question. Okay? Now I'll ask you one question. आप किसी के घर जाते हो या आप किसी के साथ गेट टुगेदर करने के लिए गए हो, राइट? एंड आफ्टर 10 minutes और 15 minutes के टाइम के बाद यू से टू योर फ्रेंड, राइट, ये मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, चल चलते हैं. और यू टेल योर डैड और मॉम कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा इनके घर पे, चलो चलते हैं. वाई? I don't know, आपको बस कुछ अजीब सा फील होता है. What is that अजीब सा? आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, पता नहीं. That is the energies. हाँ, वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होता है. So what happens is उसके आसपास की जो एनर्जीज हैं, जो वाइब्स हैं, वो आपको पता चलेंगी अगर हम अपनी बॉडी को सुने तो. So what happens is when you meditate, when you clear your inner self with the emotions, आप अपने आप को जितना क्लियर करते जाते हो ना, आपको उतनी वाइब्रेशंस और एनर्जीज पता चल जाती हैं. When I entered your studio, I told you one thing. Very positive vibes. Why? Because your thought process is very positive. You feed the positive one more as compared to the negative one. हाँ, ups and downs हर एक की लाइफ में आप नेगेटिव एक बार सोचते ज़रूर हो. I also think of that. उसे डिनाई नहीं आप कर सकते. सोचते हैं तो सोचते हैं. But at least we are accepting it. Right. So आप जब कहीं जाते हो और आपको लगता है कि मैं यहाँ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, so that means वहाँ की जो एनर्जीज एंड वाइब्स हैं, they are making you discomfort. और ये पर्सन की ये सबके साथ होता है.
सबके साथ होता है. कुछ ऐसे लोग हैं जिन मैं जानता हूँ, वो पास आते हैं, I'm like यार चलो यहाँ से जल्दी. So what happens is like I don't talk much, but I talk to those who have like-minded people, or again the vibes match. Exactly. Then we talk, Right. talking and talking and talking. So definitely energies and vibes होती हैं. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ना, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी बातें वही हैं सेम जो आज हम कर रहे हैं. फ़र्क इतना है कि उस टाइम पे वो कहते थे कि हमें ना यहाँ जाके अच्छा नहीं लग रहा. उस टाइम पे ना वो एनर्जीज, वाइब्स, वाइब्रेशंस, वर्ड्स नहीं थे. अब वो इसलिए ज़्यादा आ गए हैं बिकॉज पीपल हैव मूविंग मोर टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल पाथ. नॉट कि दैट स्पिरिचुअल कि नहीं साइड पे लेके, नो नॉट दैट. इट्स बेसिकली अवेयरनेस कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या अच्छा नहीं है, दैट अवेयरनेस. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और आपके हिसाब से जो स्पिरिचुअल पाथ होता है वो आपके करियर में भी बहुत फील करता है, राइट? या ऑब्वियसली, बिकॉज आपका एक पहली बात तो आपका एक माइंड ओपन कर देता है कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, आपका माइंड ओपन रहना चाहिए और आपको हर वक्त सीखते रहना चाहिए. और स्पिरिचुअल पाथ पे चलना या पॉजिटिव बातों पे चलना, आपको वो बहुत फ़र्क पड़ता है. एक होता है कि मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज, यहाँ लाइक पीपल टॉक, हम सरेंडर बहुत करते हैं. मैं बोल रही हूँ तो मैं करती भी हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ एक ऐसे बोलने के लिए बोल रही हूँ. नो, इफ़ आई सरेंडर, आई सरेंडर. नाउ सरेंडर इज़ बेसिकली, वो पहले ना लोग वो मानते थे, व्हाट यू से, मन्नत मांगते थे. सो आई थिंक सरेंडर इज़ द बेटर वे. सो मन्नत मांगते थे, ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे. सरेंडर इज यू टेलिंग यूनिवर्स और यू टेलिंग द वन टू हुम यू फॉलो, यू टेलिंग देम कि मेरा ये ड्रीम है या मुझे ये करना है. बोलने के बाद भूल जाओ, जस्ट वर्क ऑन इट, यू डू योर पार्ट. दैट वन पावर इज डूइंग देयर पार्ट, यू डू योर ओन पार्ट. बिकॉज जो आपका एक हार्ड वर्क है वो हमारी तरफ से ही जाना है, उनकी तरफ से ब्लेसिंग आनी है सिर्फ. राइट. सो अगर मेरे माइंड थॉट में कुछ है कि मेरे को ऐसा बनना है या वैसा बनना है, आई हैव टोल्ड दैट वन पावर आई नीड टू डू दैट. बट बैक एंड पे आई एम वर्किंग ऑन इट, how to present myself, how to speak, everything I'm doing it. So that is why. So yes, many things you need to work on. You have to believe on this कि नहीं सब कुछ है. And so there's one, I did meditation, started my meditation with Master Minood. Master? Minood. Okay. He's from Kerala, okay. right? So now what happens is like I'll tell you the issue. There were many, when you are into teenage age, आपके बड़े प्लस माइनस थॉट्स होते हैं माइंड में. पेरेंट्स नहीं सुन रहे हैं, फ्रेंड्स नहीं सुन रहे हैं, कोई तो सुन लो हमें. So he made me introduce to meditation कि what exactly meditation is. Okay. So आप जब meditation करते हो, they like made me meditation with fire, water, okay. earth, 5 elements. Now how to do a meditation with 5 elements? So what they did is we did, जैसे आपके ये आते हैं ना, फुल मून आता है या बुध पूर्णिमा आती है. So moon is very clear and you have a different vibes from moon on that day, right? So that is the first meditation. You're looking into the moon continuously. Thoughts सारे आने दो, let it be, just be calm. लुक इट कंटिन्यूसली. और थोड़े टाइम के बाद ना आपकी आंखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी एंड यू विल बी वेरी पीस एंड काम स्टेट. सो दैट इज द वन मेडिटेशन. फायर मेडिटेशन. हवन करते हैं हम लोग सारे. सो हवन कुंड इज इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट कंटिन्यूसली लुक इनटू द फायर. थॉट्स आ रहे हैं, लेट देम कम. एंड दैट्स माई एक्सपीरियंस. बेसिकली इट्स माई एक्सपीरियंस कि आपका जो फायर का कलर होता है ना, वो आपको डीप डाउन दिखना शुरू हो जाता है, ऑरेंजिश, एंड यू विल गेट इनटू अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेट. आपको पता ही नहीं चलता. ऑब्वियसली दिस इज नॉट कि आपने पहली बारी में ही किया और हो गया. दिस इज लिटिल बिट एडवांस वाला स्टेज. मतलब क्या होता है फायर में, क्या दिखना, कलर्स, डिफरेंट कलर्स. व्हेन यू आर सिटिंग इन योर मेडिटेटिंग स्टेट ना, फायर कलर इज येलो. व्हेन यू गो इनटू द डीप मेडिटेशन ना, you will get to see the blue shades of the fire. Okay. एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली ना, मैं भी मेडिटेशन क्लासेस ले रहा हूँ, तो उसमें ना डिफरेंट तरह की मेडिटेशंस कराते हैं.
तो जो आप कह रहे हो हम वही सेम चीज़ करते हैं, उसको त्राटक कहते हैं हम. एंड कैंडल के साथ, ठीक है, तो आपको कैंडल में रेगुलरली देखना होता है, चाहे आपके आंसू आए या जो मर्जी. जैसे आप ये कह रहे हो ना, कलर दिखते हैं. पहले तो आपको सिंपली 2-3 मिनट सिंपल दिखते हैं, बाद में आपको सारे कलर्स दिख रहे होते हैं उसमें. Exactly. ब्लूइश कलर दिखता है. Yeah, so you started with the candle, na? You can start with candle also, but we were doing it in a group, so we had a havan in the center, so that is why we did like that. But you can do it anyway. Whether you do meditation, whether you do EFT, whether you do surrender in life, whether you do anything in life, this is the one word only: belief. Right. If you don't have belief, forget everything. Forget everything. मैं रमन मैम के साथ भी जो पॉडकास्ट करा था, तो हमने एक तो लाइफ कोच के रिगार्डिंग हमने पॉडकास्ट किए थे, एक हमने करा था टूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो उसमें भी मैम ने ये चीज़ बताई थी कि जो बिलीफ और फेथ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अब वो नहीं होगा तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं. If I'll do water manifestations. Okay. It's very simple. Take a glass, pour water into it, right? Whatever you want, without a doubt. Without a doubt. Right? Look into that mug. It has to be a glass wala mug, okay? Because it has to be transparent. So just look into that water and speak your manifestation, what you want. Hold it for 17 to 25 seconds. Hold it, right? Then hold it with another hand. Give your energies and just drink it. Do it 7 days. 7 days. And then see what happens. Okay. But again, without a doubt. Without a doubt. Because they say if you have a doubt, then there is no manifestation, there are no affirmations, there is no surrender. अगर डाउट ही कर दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? Because when we do affirmations, ना, like we speak the lines, I am joyful. We don't use the word and, so. We don't use it because हमने क्या किया, वो words लगा के हमने ना full stop लगा दिया उसको. And और so लगा के. Okay. I am joyful. I am peaceful. I am happy. This is how we speak. And नहीं लगाना. And नहीं लगाना. Yeah, and नहीं लगाना. And to be very frank, like if you want to do tapping for yourself, what you can do is early in the morning just get up out from your bed and everything. If it's convenient for you, sit in the garden or somewhere. If not, sitting in your living room or somewhere, sit on a chair or a sofa. What you can do is just tap here. Okay. For 60 seconds. तो ये दो fingers. The first two fingers. Okay. They tap it and you can say, I'm joyful, I'm joyful, I'm joyful, I'm joyful. You have to speak it continuously with a smiling face and believe it. Yes, I am joyful. This is the one way you can do it. The other way is you can tap here. Okay. Right? Now this is the basically very, we humans get irritated and frustrated very easily, right? So here you can say yourself, I am very calm, I am very calm, I am very calm. Okay. If you're getting, into some kind of hesitations or some kind of anxieties or something like that, tap it here. Tap it here. Okay. और ये कुछ है कि इस हाथ से करना है? You have to do it in both hands. अच्छा do it on the both hands. अच्छा ठीक है. Like 5 minutes, something like that. 60 seconds. 60 seconds एक जगह. 60 seconds on the other hand. And do it. Make it a practice. Okay. Make it a practice. Okay, so being an artist, basically what happens is हमारा माइंड ना हाइपर एक्टिव हो जाता है, राइट? इट्स सेम विद यू ऑल्सो कि आज कुछ नया करना, आज क्या करें, आज तो कुछ किया ही नहीं है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन काम आवरसेल्व्स ओवर टैपिंग ओवर हेयर. ओके, यू नो, I am calm, I am calm, I am calm. So what happens is you're giving a message to your organs that today I am calm. Okay. What I believe is, I'll tell you my experience now. Whatever happens now, for example, किसी ने लड़ाई की आके कुछ किया, I don't utter the word. I am on silent mode. उसके बाद जनरली क्या होता है, आपके माइंड में चल रहा होता है, यार चल थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, मैं वो भी नहीं बोलती हूँ. अच्छा. What I do is I surrender on universe. अपने आप बोल दें, अपने आप मैसेज कन्वे करते, मैंने कुछ नहीं बोलना किसी को. नाउ अब मैसेज कैसे कन्वे होएगा सामने वाले को? एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम. आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जब स्क्रॉल करते हो द स्टोरीज, आपके सामने कोई ना कोई कोटेशन आ जाती है. So this is how universe answers for you. Oh, okay. So let universe works. So now this is what my my way is. If anybody is fighting with me, my friend, my cousins, मजाक में चलता ही सब कुछ. So I tell my universe,
you know exactly what happened, Right. and you know how to give answers. Do it on your own. I'm not going to do anything. I'm calm. Right. लाइक कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मेरी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई नहीं मतलब ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो गए बेसिकली. तो मैं ऐसे शांत हो जाता हूँ बिल्कुल भी. फिर वो मेरे को पूछते कि यार तू एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें यही बोलता, मैं अगर मैंने अभी एक्सप्रेस कर रहा ना तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा और फिर बाद में बहुत ख़राब होगा. एंड फिर आई टेक सम टाइम, मैं सोचता हूँ, और फिर आप जैसे कह रहे हो इंस्टा पे ना कुछ ऐसे ही दिख जाएगा मुझे, तो आई वाज लाइक ओके दिस इज़ व्हाट आई नीड टू से. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक व्हाट आई बिलीव इज बाई चांस, चलो ये तो एक आई हैव सरेंडर्ड इट ऑन यूनिवर्स कि आप देख लो आपने क्या करना ना. इट बाई चांस विद अस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई एम इन सम काइंड ऑफ अ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जिसके साथ मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, यू नो, एंड आई शेयर इट विद टू हुम आई फॉलो, राइट. सो अगर मैंने उनसे बैठ के बात की फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूँ, बात करके आई एम डन. व्हेन एवर आई स्क्रॉल माई इंस्टाग्राम, मेरे को वो मैसेज आ जाता है कि ये तेरा क्वेश्चन था, नाउ दिस इज द आंसर. नाउ इट डिपेंड्स वेदर आई वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट. इट्स नॉट कि सामने आ गया पढ़ लिया एंड डन. नो, अगर वो आता भी है ना, आई एक्सेप्ट इट एंड आई वर्क ऑन इट. Right. Then only, you know, you can be on a peace and on a calm stage. Otherwise, it's not possible. Right. Otherwise, और मतलब ज़रूरी नहीं कि इंस्टा, क्योंकि हम जाते हैं इंस्टा देखते हैं तो इंस्टा पे मिल जाता है. any way out, कहीं से भी कुछ. somebody will send you WhatsApp message. हाँ. If you're reading a book, आपको उसमें से कोई lines मिल जाएंगी. If you're traveling, आपको ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा और कार के पीछे कोई स्टिकर मिल जाएगा. If message has to come from a universe, it can come in any kind of a form. It can come through me also. मैं आपको कोई ऐसी बात बोल दूँ, हो सकता है कि आपने वो सुबह कुछ सोचा और आपको मेरे थ्रू आंसर मिल गया हो. You never know. कुछ मिले हैं. Oh wow. जैसे एक इंसिडेंट तो मैंने आपको बताया ही, ऐसे काफ़ी सारे आंसर्स मेरे को मिले. So this is why यूनिवर्स ने अगर मैसेज कन्वे करना है, यूनिवर्स विल कन्वे अ मैसेज यू इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म. It's not obviously not through Instagram. It can be in any form. Any form. Yeah. Right. कुछ और आप बताना चाहोगे? I think I'm done. If I will speak, I will speak. एकदम मेरे को भी लग रहा है अगर हम इस पे बात करेंगे तो go for hours. Because I think it's an endless topic. And again a thing. Again, I just want to conclude in a simple manner that just believe in yourself and have faith. If you having a faith in that one power, whether you're following anybody or it's a universe, you need to have faith. Right. Patience है तो लाइफ चलेगी. पेशेंस नहीं है तो चाहे वेदर इट्स योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ, वेदर इट्स विद योर फ्रेंड्स, विद योर कजन्स, आपकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी. एंड आप कभी सोच के देखना, लाइक व्हेन यू आर मोर क्लोज टू द स्पिरिचुअल, यू नो, path in the sense of awareness, right? In the sense of awareness, if universe doesn't want few people or few persons around you, he will create a situation and they will go like this. Exactly. And then you will say, oh wow, kuch hua tha. So I think that is the best part. And if it's happening with you also, like you feeling like some people are going like this, let them go. Don't stuck with them, because universe doesn't want like, you know, those people around you, because universe has listened those talks which you don't have listened. Exactly. And to be very honest, बहुत recently हुआ मेरे साथ. So it's okay. I think we should accept it. Actually I've accepted. I think हर एक काम के पीछे कुछ अच्छा होता है. अगर कुछ डिले होता है उसके पीछे भी कुछ अच्छा होता है. And if something is happening plus minus in your life, it's okay. And like conclude करना चाहूँगा मैं, आपने जो बोला एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. जैसे एक्टोफिलिया जो शो था, I started it 1 year ago, but उसमें सिर्फ ऑडियो वाला था. तो आई यूज़ टू अपने एक्सपीरियंसेस, और बंदे के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते रहे, वो सेम ही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो. एंड आई एम जस्ट 19, तो अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस होने बाकी है. बट और वो ना डिले हो गया. मैंने ऐसे एक्टोफिलिया का लोगो बना के ऐसे छोड़ दिया और कभी देखा नहीं है वो. फिर सडनली मेरे को एक और आई एम सो ग्लैड कि वो डिले हुआ, और मैंने BNI ज्वाइन करा, बहुत सारी चीज़ें, ये सेटअप क्रिएट हो गया. एंड अब ना लाइक सो ग्लैड कि यार ये पोस्टपोन हुआ. उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे सारे, अब एक तरह से सब तरफ से रिसोर्सेज आ गए, तो तभी ऐसी कॉन्वर्जेशंस पॉसिबल. वो डिले हुआ एक सही चीज़ के लिए. उस टाइम पे मैं हो रहा था यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. That at that point of time the time was not perfect. Not so perfect, now the time is perfect, so you have started again.
एग्जैक्टली और अब लोगों को भी इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन सुनने को मिली. I think people will enjoy it more because we are experiencing this, like, you know, like our like sharing our experiences, basically what we have experienced. It's not कि किसी की सुनी हुई बातें we are speaking. No, it's basically जो हमने share किया है, experience ही share किया ना, और तो कुछ share ही नहीं किया. I think it's more of real as compared to the real. तो फिर इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना पॉडकास्ट. Okay. एंड थैंक यू सो मच मैम, आप आए पॉडकास्ट पे, बहुत मज़ा आया. और अभी मैं चाहूँगा कि आप और भी ऐसे पॉडकास्ट के लिए आते रहो. हम और ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करें. चलो, थैंक यू एवरीवन. Thank you. थैंक यू सो मच.